Hello students, myself Jinalisha welcomes you on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last lecture, we have studied regarding the replication. Today we will begin with the topic transcription. So basically what was replication? Replication was a process where using existing DNA molecules, identical DNA molecules were prepared. Now today we are going to learn about transcription. So what is transcription? So basically it means to form the copy of the RNA from the existing DNA molecules. So what is transcription? The process of copying the genetic information from one strand of the DNA into the RNA is termed as transcription. So basically we know that the genetic information is stored in the DNA. But DNA cannot be directly used in translation. So whatever information is stored in DNA, it have to be passed on to the RNA. So that process of making the RNA using one strand of the DNA as a template, that process is called as the transcription. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine complements now forms the base pair with uracil instead of thymine. So जैसे replication में base pair का rule था, complementarity का rule था कि suppose if a template is having A, so the new strand which is formed will be having T. So same way here also there is a rule of complementarity, but the difference here is adenosine here will form a base pair with uracil instead of thymine. So if replication is there, adenosine will form the base pair with thymine. But in transcription, where RNA is made using a DNA as a template, so here adenosine will form a base pair with the thymine. Now, however, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of an organism gets duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one strand of the DNA is copied into the RNA. So, students, what is the main difference between transcription and replication? Replication में क्या था कि complete DNA, that is a complete segment of the DNA, it gets duplicated and both the strands of the DNA were acting as a template in the process of replication. But in the process of transcription of the two strands of the DNA, only one strand of the DNA act as a template, and from that one strand also only a segment of the DNA gets transcripted. जबकि replication में क्या था कि पहले तो दोनों chains of the DNA, both the strands of the DNA, उनका duplication होता था, and दूसरा complete strand of the DNA gets duplicated, whereas in the process of transcription of the two chains of the DNA, only one will act as a template. ओके जो टेम्पलेट वर्क कर रही है, द चेन विच इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट, उसमें भी कैसा है, ओनली अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैंड, ओनली अ सेगमेंट ऑफ दैट चेन will be transcribed. So that is the main difference between the replication and the transcription. This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of the DNA would be transcribed. Okay, replication में तो दोनों chain were acting as what? Template. But in transcription I told you it is only one chain which will act as a template. So there are certain rules, there are certain boundaries कि जो decide करेगी which strand of the DNA would act as a template or which strand of the DNA would be transcribed. Now question arises कि replication में तो दोनों chain were used as a template and both the strands were forming a new DNA molecule. But why in transcription not both the strands are copied? So question is, why both the strands are not copied during transcription? Students, this is very important. So the reason is, there are two reasons why both the strands of the DNA are not copied during the transcription.
Suppose, so first reason, if both the strand act as a template, they would code for a RNA molecule with different sequences. Remember, complementarity does not means identical. And in turn, if they code for proteins, the sequence of the amino acids in the protein would be different. Now listen, the first reason, अगर दोनों chain template की तरह work करती, if both the strands of the DNA would act as a template, then what would happen? They would code for two different types of the RNA. Say for example, suppose this is one chain of the DNA जिस पे A, T, C, C, T sequence है. Okay? Of course, उसकी जो opposite जो DNA होगा या उसकी जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसमें क्या कंपोजिशन होगा डीएनए का. सो इट वुड बी TAGGA, राइट. ये कुछ ऐसा सीक्वेंस होता. सो सपोज दिस इज द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, देन ऑफ कोर्स दिस वुड बी द अदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. नाउ ये स्ट्रैंड पे आरएनए बनता, तो ये स्ट्रैंड के आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? सो ए वुड पेयर विथ यू, T would pair with A, C with G, C with G and T with A. Similarly, यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रैंड है DNA, उस पे RNA का सीक्वेंस क्या बनता? So T would pair with A would pair with U, G with C and A with U, right? Now see students, क्या difference है? The RNA and this RNA, this both RNAs, they are different, right? They both are having the different sequences. Okay, as both the RNA are having different sequences, the proteins they code for would be different because the sequence of the amino acids in these proteins would be different. So, hence only one segment of the DNA would be coding for two different proteins. Are you getting my point? एक segment would be coding for two different proteins and that would complicate the genetic information transfer machinery. So that is one reason. Okay. Now another reason. The two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA. Okay. दो चेन, अगर दोनों चेन टेम्पलेट की तरह वर्क करती, लिसन वेरी केयरफुली, इफ बोथ द चेन्स वर एक्टिंग एज ए टेम्पलेट, तो दो आरएनए बनते. अभी ये जो दो आरएनए बनते वो एक दूसरे से कैसे होते? कॉम्प्लीमेंटरी होते. एज बोथ द आरएनए फॉर्म वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, वो दोनों क्या हो जाते? जॉइन होते. एंड कैसा आरएनए बनाते? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. नाउ अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता, देन इट वुड प्रिवेंट द आरएनए फॉर्म बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता, एंड ट्रांसलेशन पॉसिबल होता नहीं तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता. सो द एक्सरसाइज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन वुड बी फ्यूटाइल. सी, अगर दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह वर्क करती तो दो आरएनएस बनते. ये दोनों आरएनएस एक दूसरे से कैसे बनते? कॉम्प्लीमेंट्री बनते. एज बोथ द आरएनए, अगेन से फॉर एग्जांपल मैं फिर से ये एक्सप्लेन करती हूँ. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन चेन ऑफ द डीएनए. ओके, ये एक चेन डीएनए की है. ऑफ कोर्स उसकी दूसरी चेन का सीक्वेंस क्या होगा? सो इट वुड बी TAANG. ओके, नाउ इसके ऊपर जो आरएनए बनता वो कैसा बनता? UAANG. एंड इसके ऊपर कैसा आरएनए बनता? सो इट वुड बी AUUNG. नाउ लिसन, ये दो चेन एक दूसरे से कैसी है? कॉम्प्लीमेंटरी है. ओके, एज बोथ द सी, A pairs with U, A with U, A with U and G with C. तो ये दोनों चेन कैसे है? कॉम्प्लीमेंटरी है. कॉम्प्लीमेंटरी है तो ये आरएनए जो बनता वो कैसा हो जाता? डबल स्ट्रैंडेड. एंड कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बनता तो वो कैसा होता? इट वोंट बी हेल्पफुल इन द ट्रांसलेशन. यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन होकर
प्रोटीन नहीं बनता, विच मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो हुआ वो कैसा होगा, फ्यूटाइल. फ्यूटाइल यानी वर्थलेस. क्यों वर्थलेस है? अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो उसका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है. सो दिस आर द टू रीजंस व्हाई both the strands of the both the strands of the DNA are not copied during the transcription. First reason is, if both the strands of the DNA would act as a template, they would code for the RNA molecules which have the different sequences. It means that the proteins they would code for will contain the different amino acid sequences, and hence both the proteins would be different also. And another reason is, if both the DNA strands act as a template, they will form the two RNAs which will be complementary to each other, and they would form the double stranded RNA. Double stranded RNA cannot be translated into the protein. Hence, the process of the transcription would be futile. So, these are the two reasons why both the strands of the DNA are not transcribed at the time of the transcription, or are not copied at the time of the transcription. Now, the transcription unit. Transcription unit कैसा होता है? So, transcription unit in a DNA. So, first of all, what is a transcription unit? It is defined primarily by three regions in the DNA. So, जो chain का transcription होने वाला है, that contains three regions. One is a promoter region, another is a structural gene, and another one is a terminator region. कितने regions है? 3 regions है. Now, there is a convention in defining the two strands of the DNA in a structural gene of a transcription unit. So, अभी कौन से strand को हम structural gene की तरह वर्क करेंगे? देयर इज़ वन मेथड. नाउ से फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? सो वन ऑफ द चेन विल बी हैविंग द पोलैरिटी 3' to 5' and other will be having the polarity of 5' to 3'. Okay. Now, since the two strands have the opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in one direction, that is 5' to 3' direction. ओके ये डीएनए की स्ट्रेंड्स है, ये दोनों की पोलैरिटी कैसी है? अपोजिट है. एक स्ट्रैंड की 3' to 5' है, दिस इज अ स्ट्रैंड विथ 3' to 5' पोलैरिटी, एंड दिस स्ट्रैंड विद द 5' to 3' पोलैरिटी. नाउ इसमें से कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेगी? तो एक रूल है उसका. सो व्हाट इज़ द रूल? जैसे डीएनए पॉलीमरेज कहाँ कौन से डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता था? 5' to 3'. सेम वे यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होने वाला है, तो एंजाइम यूज्ड विल बी आरएनए पॉलीमरेज. ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ करके आरएनए बना रहा है, इसीलिए वो आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोला है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर आरएनए बना रहा है, बट किसको यूज़ करके? सो डीएनए को यूज़ करके. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. नाउ ये आरएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, एंड दैट डायरेक्शन इज़ 5' to 3'. यानी वो आरएनए मॉलिक्यूल को कौन सी डायरेक्शन में बना सकता है? 5' to 3'. यानी ये दो डीएनए की चेन्स है, एक 3' to 5' वाली एंड 5' to 3' वाली, एंड आरएनए कौन सी डायरेक्शन में बनता है? 5' to 3'. यानी डीएनए की जो चेन जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट वुड एक्ट एज अ टेम्पलेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए which is having the polarity 3' to 5', it will act as a template, or also it is called as the antisense strand, template strand or the antisense strand. Okay, anti yani opposite. So basically of the two strands of the DNA, the strand which is having the polarity
3' to 5' will act as a template because RNA polymerase can carry out the polymerization only in the 5' to 3' direction. कॉम्प्लीमेंटरिटी है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आरएनए बनने वाला है. सो ऑफकोर्स जो डीएनए का 3' to 5' है उसके ऊपर ही 5' to 3' में क्या बनेगा, आरएनए बनेगा. So that strand is called as a template strand, or also it is called as the antisense strand. And the other strand is called as a coding strand. अभी जो चेन है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, that strand is called as a coding strand, or also it is called as a sense strand. नाउ क्वेश्चन अराइज, इसको क्यों कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, या क्यों इनफैक्ट ये वाली चेन तो किसी आरएनए नहीं बना रही है, फिर भी उसको क्या बोला है, कोडिंग स्ट्रैंड, या उसको सेंस स्ट्रैंड बोला है. क्यों सेंस स्ट्रैंड बोला है, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो आरएनए बनेगा एंड ये जो कोडिंग सेंस है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लिसन माई टर्म्स वेरी क्लियरली. जो आरएनए बनेगा नया, उसके जो सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड के, एंड अपने जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड है, ये दोनों के बेस पेयर की सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस कैसी है, सेम है, एक्सेप्ट आरएनए में टी की जगह पर यू रहेगा जबकि डीएनए में वो टी रहेगा. यही एक डिफरेंस है. अदरवाइज ये दोनों स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या और सेंस स्ट्रैंड एंड जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, ये दोनों के सीक्वेंसेस कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. सो द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5' to 3' and the sequence same as the RNA except thymine at the place of the uracil is displaced during the transcription. So जो दूसरी स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, उसका सीक्वेंस कैसा होगा, इट विल बी सिमिलर टू जो नया आरएनए बनेगा. डिफरेंस क्या रहेगा, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. So strangely this strand which does not code for anything is referred to as coding strand. से ये स्ट्रैंड कुछ के लिए भी कोड नहीं कर रहा है. कोड तो कौन कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस के हिसाब से आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बना रहा है, जबकि दूसरी जो चेन है डीएनए की वो तो किसी के लिए कोड ही नहीं कर रही है, फिर भी उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला है या सेंस स्ट्रैंड बोला है. क्यों, क्योंकि उसका सीक्वेंस किससे सिमिलर है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से. Now students, very important thing, all the reference point while defining a transcription unit is made with a coding strand. यानी हमने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन्स है, प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है एंड देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल जीन. सो ये जो 3 रीजन्स हमने डिफ़ाइन किए हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये किसके हिसाब से डिफ़ाइन किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. यानी कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस लेकर ही द 3 रीजन्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आर डिफाइंड. The 3 regions of the transcription units are defined on the basis of the coding strand. Now ये हम पीछे देखते हैं कैसे, उसके पहले now say for example to explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी ये डीएनए है, एक डीएनए की पोलैरिटी 3' to 5' एंड उसके अपोजिट 5' to 3'. सो 3' to 5' वाली टेम्पलेट है एंड दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड. सो नाउ कैन यू टेल मी द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए फ्रॉम द अबव सीक्वेंस. येस, इजीली वी कैन से आरएनए जो बनेगा उसका सीक्वेंस कैसा होगा, कोडिंग स्ट्रैंड की जैसा ही होगा, सिर्फ जहाँ पे टी है इन द कोडिंग स्ट्रैंड, दैट टी वुड बी replaced by what, it would be replaced by u. Otherwise the sequence of the coding strand and the RNA which will be formed will be same. The only difference is coding strand में जहाँ पे T होगा, इन उस जगह पे RNA sequence में क्या होगा, U. See,
RNA किस पे बनने वाला है? वेयर विल बी द RNA फॉर्म? इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द 3' चेन, 3' to 5' पोलरिटी वाले में. सो ए की जगह पर क्या होगा? यू होगा. टीपी की जगह पे क्या होगा? ए होगा. जी की जगह पे क्या होगा? सी. सी की जगह पे जी. ऐसा आप पूरी चेन करोगे तो आपको ये सीक्वेंस मिलेगा. या ओके. सो बेसिकली ये दोनों चेन का सीक्वेंस क्या है? सिमिलर है. डिफरेंस लाइज कहाँ पे? टी की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? यू होगा. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द. सो इफ we know both the sequences, we can determine the sequence of the RNA. Now I told you कि structural gene की polarity या कौन सा पार्ट structural gene है, कौन सा पार्ट promoter region है, कौन सा पार्ट terminator region है, it is always done in taking the reference of the coding strand. So 5' end and 3' end of the structural gene are referred with respect to the polarity of the coding strand. So say for example ये दोनों DNA के strands है. One is in 3' to 5' direction and other is in 5' to 3' direction. ये वाली chain कौन सी है? Template strand है. And this one will be which strand? Coding strand. Now students, जो भी हम regions कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, there are 3 regions: promoter, structural gene and the another one is the terminator region. So ये जो regions हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, they are taken with respect to the polarity of what? Coding strand. Okay. So promoter कहाँ पे located है? It is located at the 5' end of the coding strand. So this is the 5' end. So यहाँ पे क्या located है? Promoter. And terminator is located towards the 3' end of the coding strand. So ये वाला region क्या हो गया? Terminator. Always स्ट्रक्चरल जीन के रीजन्स को डिफाइन करना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करना है. सो विच स्ट्रैंड इज टेकन एज अ रेफरेंस? द कोडिंग स्ट्रैंड. सो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे क्या लोकेटेड है? प्रमोटर. एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज लोकेटेड? टर्मिनेटर. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So promoter is located towards the 5' end of the coding strand, referred to as 5' end of the structural gene. ये पूरा जीन है जो ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाएगा? बाद में प्रोटीन बनाएगा. सो ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है. सो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रमोटर है. सो इट इज़ कॉल्ड एज द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड, which is referred to as a 3' end of a structural gene. Now, RNA polymerase it binds to the promoter site. RNA polymerase किसको bind करेगा? Promoter site पे. And it will start the process of the transcription. That is synthesis of the RNA on the template. So RNA किस पे बनेगा? Template पे. Okay? And starts moving towards the terminator. अभी RNA कहाँ पे मूव होगा? Terminator पे. It will move towards the terminator. The RNA molecule is synthesized over the template strand in 5' to 3' direction. So suppose this is the 2 strand of the DNA. This is 3' to 5' end and this is the 5' to 3' end. That chain of the DNA which have the polarity 3' to 5', it act as a template and 5' to 3' वाली it act as a coding strand. Okay, promoter हो structure या terminator region हो या structural region हो, it is taken on the basis of the coding strand. Coding strand के 5' end पे क्या located है? Promoter. And coding strand के 3' end पे क्या located है? Terminator. RNA polymerase कहाँ पे bind होगा? So basically it will bind towards the promoter site and then it will start the process of transcription on the template in the 5' to 3' direction. And it promoter से start होकर वो कहाँ पे finally पहुँचेगा? At the terminator region. So basically this is a schematic diagram of a transcription unit. आप देख सकते हो. See, this complete is a structural. ये जो पूरा यूनिट है दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल जीन.
अभी उसमें कितने स्ट्रैंड्स है? 2, 3' to 5' and 5' to 3'. Okay. The chain which is having the polarity 3' to 5', it act as a template strand, and that which is having the 5' to 3' polarity, it is called as which strand? Coding strands. Okay. Now all the points are marked on the basis of the coding strand. कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे क्या लोकेटेड है? प्रमोटर. एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे क्या लोकेटेड है? टर्मिनेटर. आरएनए पॉलीमरेज किसको बाइंड करेगा? प्रमोटर पे. एंड देन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द डायरेक्शन 5' to 3' किसका सिंथेसिस होगा? आरएनए सिंथेसिस होगा. So this is a diagram of a transcription unit. Now the promoter and terminator flank the structural gene in the transcription unit. Flank यानी they are located at the side of something, यानी एक साइड पे टर्मिनेटर है एंड एक साइड पे प्रमोटर है, इसलिए उसको बोलते हैं कि सपोज ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये पूरा जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, तो उसके एक साइड पे प्रमोटर है एंड एक साइड पे क्या है? टर्मिनेटर है. सो दैट इज सेड टू बी फ्लैंक्ड. आई टोल्ड यू, फिर से यही एक्सप्लेन किया है. प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड एट द 5' एंड, यानी अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम यानी क्या है? ये 2 चेन है. ओके, ये 3' to 5' एंड ये कौन सी होगी? 5' to 3'. ओके, ये कौन सी स्ट्रैंड है? टेम्पलेट. ये कौन सी है? कोडिंग. ओके, कोडिंग स्ट्रैंड की 5' एंड पे क्या है? प्रमोटर. एंड उसके 3' एंड पे क्या है? तो टर्मिनेटर. सो ये वाला पार्ट जो लेफ्ट साइड पे है ये अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम. So promoter is located at the 5' end of the structural gene, and it is the sequence that provides the binding site for the RNA polymerase, and it is the presence of the promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strand. So the 5' end of the structural gene is the promoter, and it is that region जहाँ पे RNA polymerase bind होकर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है. प्रमोटर भी डिसाइड करेगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कैसा है. सपोज उसकी पोजीशन स्विच होती है टर्मिनेटर के साथ, सो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे? वो भी रिवर्स हो जाएंगे. से फॉर एग्जांपल, लिसन वेरी केयरफुली. यहाँ पे एक स्ट्रैंड में बना रही हूँ. ये है 3' to 5' एंड ये वाली जो these are the 2 strands of the DNA, one with the 3' to 5' polarity and another is with the 5' to 3' polarity. ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये प्रोमोटर है एंड ये क्या है? टर्मिनेटर है. ओके, सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा. अभी मैं टर्मिनेटर की पोजीशन इससे एक्सचेंज कर देती हूँ, यानी टर्मिनेटर और प्रमोटर की पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो क्या होगा? ये कोडिंग स्ट्रैंड है एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कोडिंग हो जाएगा एंड कोडिंग स्ट्रैंड है वो कैसा हो जाएगा? What it would become? It would become a template strand. Now where is terminator located? It is located at the 3' end of the coding strand. And what is the function of the terminator? नाम से ही मालूम पड़ता है. It basically defines the end of the transcription process. यानी RNA molecule terminator तक पहुँच गया. It means the process of transcription now would stop. Apart from that, there are additional regulatory sequences that may be further present upstream or downstream to the promoter. इसके अलावा थोड़े regions भी होंगे. टर्मिनेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के अलावा दूसरे भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होंगे which you will be discussing while studying the process of gene expression. Now ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एन अ जीन, ये कैसे होता है? सो अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. Though there is no unambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in the terms of the DNA sequences. We know that genes are located on DNA,
बट डीएनए के सीक्वेंस के फॉर्म में जीन को डिफाइन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. A DNA sequence coding for tRNA and rRNA molecule would also define a gene. जीन का सिर्फ डेफिनेशन ये नहीं है कि दैट पार्ट ऑफ द डीएनए विच फॉर्म्स द एमआरएनए उसको ही जीन नहीं बोलती है. सी ऑल द टाइप्स ऑफ द आरएनए दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द DNA. All the types of the RNA. There are 3 types of the RNA: mRNA, tRNA and rRNA. जो भी RNA है उसका फॉर्मेशन कौन करने वाला है? DNA ही करने वाला है. यानी इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि दैट पार्ट ऑफ द DNA जो mRNA बनाता है उसको ही हम जीन बोलेंगे. द पार्ट ऑफ द और द सीक्वेंस ऑफ द DNA that codes for tRNA and rRNA, it is also considered as a gene. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit would be called as monocistronic, mostly in eukaryotes, and polycistronic in the bacteria or prokaryotes. Now, first of all, what is a cistron? So basically the segment of the DNA which signals the synthesis of one polypeptide, it is called as a cistron. Cistron क्या होता है? पूरी DNA होती है, वो पूरा DNA कभी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है. So that part of the DNA segment which codes for a polypeptide, which codes for a protein, that is called as a cistron. Now that DNA it may be of 2 types. Monocistronic. Monocistronic यानी क्या हुआ? जो मेनली यूकैरियोट्स में होता है. मोनोसिस्टोनिक यानी क्या है? जीन एमआरएनए बनाएगा एंड वो एमआरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्टोनिक. मोनो यानी वन, यानी वन जीन सेगमेंट फॉर्म्स वन एमआरएनए विच कोड्स फॉर ओनली वन प्रोटीन. बट इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ पॉलीसिस्टोनिक. पॉली यानी मैनी, यानी कि एक सेगमेंट जीन की जो एक एमआरएनए बनाएगा, दैट सिंगल एमआरएनए कोड्स फॉर मोर देन वन प्रोटीन. यानी एक एमआरएनए मोर देन वन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्टोनिक. सो वन एमआरएनए इफ इट कोड्स फॉर मोर देन वन प्रोटीन, पॉलीसिस्टोनिक. एंड मोनोसिस्टोनिक यानी वन एमआरएनए विल ट्रांसलेट एंड इट फॉर्म्स ओनली वन प्रोटीन. In eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequences. The genes in the eukaryotes are called to be split genes. अभी यूकैरियोट्स में जो जीन्स होती है वो स्प्लिट जीन्स होती है, ये हम लेटर देखेंगे. बट सिंपल टर्म्स में मैं ये बोल रही हूँ कि एक पूरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा. अभी एमआरएनए में सर्टन सीक्वेंसेस ऐसे होंगे that won't be coding for any of the proteins. Okay, यानी उसको बोलेंगे इंट्रॉन्स. एंड दैट पार्ट ऑफ द एमआरएनए जो प्रोटीन को कोड करेगा उसको बोलेंगे एक्सॉन. सो यूकैरियोट्स में जो पूरा एमआरएनए बना है उसका प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है, यानी जो इंट्रॉन्स है उसको रिमूव करना क्या है? बहुत ज़रूरी होता है. वी विल स्टडी दिस पार्ट व्हेन वी स्टडी द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग. नाउ व्हाट हैपन्स? द कोडिंग सीक्वेंस, सी इधर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है स्प्लिट जीन क्या होती है. द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर टर्म्ड एज एक्सॉन्स. एक्सॉन्स क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस यानी वो किसके लिए कोड करेंगे? प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे. सो एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज डीएनए सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. यानी आरएनए प्रोसेसिंग करके जो पार्ट रहते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सॉन्स. दिस एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स. से फॉर एग्जांपल ये एक एमआरएनए बना है, किस में से? डीएनए में से. सो सपोज ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन्स है. सो जब आरएनए बनता है तो उसमें 2 रीजन्स होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक्स आरएनए. सो ये एक इंट्रॉन्स है जो क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं या एक्सप्रेस, यानी ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन जो इंट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग. सो प्रोसेस
जो mRNA बना उसमें से ये इंट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ RNA प्रोसेसिंग. ओके, बाद में इंट्रॉन्स रिमूव करके एक्सॉन्स बच गए, ये एक्सॉन्स को फिर जॉइन हो जाएंगे. सो इन अ प्रोसेस्ड RNA सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं. ओके, introns or intervening sequences do not appear in a mature or processed RNA. So this is called as a split gene arrangement. Split gene यानी exon intron exon intron exon intron, इसमें से introns हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे. Such gene is called as a split gene. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequences of the structural gene. However, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for the RNA or protein. Now, which are the types of the RNA and how the process of transcription occurs? We will see that. So, in bacteria, there are three major types of RNA: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. बैक्टीरिया में ही नहीं, यूकैरियोट्स में भी ये 3 टाइप्स के RNA होते हैं. अपार्ट फ्रॉम देयर दूसरे 1-2 टाइप के होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे. बट दिस आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ द RNA इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स: मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड द रिबोसोमल RNA. नाउ ऑल द RNAs आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज्ड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. ये तीनों 3 RNA आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सबका रोल क्या है? mRNA क्या प्रोवाइड करेगा? टेम्पलेट, जिसके वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. tRNA, ट्रांसफर RNA, जो क्या लाएगा? व्हाट आर प्रोटीन? दे आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. सो ये प्रोटीन को mRNA पे लाने का काम कौन करेगा? सो इट इज़ द tRNA. एंड इट ऑल्सो रीड्स द जेनेटिक कोड, जो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? mRNA पे. सो mRNA विल प्रोवाइड ए चेन. mRNA क्या बनाएगा? एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की. tRNA क्या लेकर आएगा? अमाइनो एसिड. एंड वो जो mRNA के ऊपर सीक्वेंस है उसको भी वो रीड करेगा. एंड राइबोसोमल RNA, दे प्ले द स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस राइबोसोम्स पे होता है. एंड राइबोसोम्स को बनाता कौन है? राइबोसोमल RNA. सो दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल रोल. एंड दिस rRNA, दे ऑल्सो प्ले द एंजाइमेटिक रोल और द कैटालाइटिक रोल. So all these RNAs are required at the time of the protein synthesis. And the enzyme which is involved in the transcription is which? RNA polymerase. Now in eukaryotes there are 3 types of the RNA polymerase. Eukaryotic organism में 3 types of the RNA polymerase है. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. ओके, RNA polymerase 1 किसका सिंथेसिस करता है? 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA. RNA polymerase 2 किसका सिंथेसिस करता है? mRNA का. एंड RNA polymerase 3 is used for the synthesis of tRNA, 5S rRNA and snRNA, that is small nuclear RNA. अभी ये snRNA क्या है वो बाद में देखेंगे. So these 3 types of the RNA polymerase, it forms the different types of the RNAs. Now each RNA polymerase, it is made up of approximately 10 to 15 polypeptide chain. RNA polymerase क्या है? enzymes है, right? What are they? enzymes. enzyme का chemical nature क्या है? proteins. So they are polypeptide in nature. So each RNA polymerase enzyme, it is made up of approximately 10 to 15 polynucleotide chain. Whereas the prokaryotes have only one type of the RNA polymerase, जो सब RNA का synthesis करेगा. जबकि यूकैरियोट में rRNA का synthesis, mRNA का synthesis and tRNA का synthesis, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA polymerase करते हैं. जबकि प्रोकैरियोट में एक ही RNA polymerase है एंड दैट विल बी सिंथेसाइजिंग ऑल द टाइप्स ऑफ द RNA. अभी ई कोलाई की RNA polymerase, इट इज़ अ कोर एंजाइम, मेन एंजाइम है, जिसके पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? 5.
जबकि यूकैरियोटिक आरएनए में कितनी आरएनए पॉलीमरेज के पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? 10 to 15. Whereas prokaryotic RNA polymerase, that is RNA polymerase of E. coli, it consists of 5 polypeptide chain, beta, beta dash, 2 alpha chain and 1 omega chain. Now there is also a sigma factor or sigma polypeptide chain which is called as a sigma factor. So ये core enzyme यानी कि main part with the 5 polypeptide chain and the sigma factor, ये क्या होते हैं? join होते हैं and क्या वह बनाते हैं? RNA polymerase. So RNA polymerase is core enzyme plus the sigma factor. Now how the process of transcription occurs? There are 3 stages in the process of transcription. First is initiation, second is elongation and lastly it is termination. So क्या होता है? Initiation. So first process or first step is the initiation. DNA has a promoter site where RNA polymerase bind and a terminator site where the transcription stop. हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके 2 रीजन्स है, एक साइड पे प्रमोटर, एक साइड पे टर्मिनेटर. प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा एंड टर्मिनेटर साइट वो है कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. नाउ ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में प्रमोटर क्या करेगा? प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. सो ये प्रमोटर को आइडेंटिफाई कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर. सो क्या होता है? इट रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर साइट. सो सिग्मा फैक्टर प्लस द कोर एंजाइम. ई कोलाई की बात करते हैं तो कोर एंजाइम में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? 5. बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा एंड ओमेगा, ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कोर एंजाइम बनाती है एंड अनदर वन इज द सिग्मा फैक्टर. ये जॉइन होकर पहले तो क्या बनाते हैं? आरएनए पॉलीमरेज. नाउ ये आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है it will attach to the promoter site or it helps the RNA polymerase to find the promoter site and bind to it. So कैसे? ये sigma factor करता क्या है? So in prokaryotes before 10 nitrogenous bases from starting point is a sequence of 6 base pair TATAAT on the DNA which is called as a Pribnobox. Now say students, एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये 3' to 5' है एंड ये चेन है 5' to 3'. ओके, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है. यहाँ पे कौन सा रीजन है? प्रमोटर रीजन. एंड यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है? टर्मिनेटर. ओके, अभी यहाँ पे क्या बॉइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज विद द सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है कहाँ पे अटैच होने के लिए? प्रमोटर के लिए अटैच होने के लिए. तो ये कैसे करता है? सो ये सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट में ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ये स्टार्टिंग पॉइंट में 7 नाइट्रोजिनस और यू कैन से 10 नाइट्रोजिनस बेसिस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ सीक्वेंस ऑफ. क्या होता है? In prokaryotes, before 10 nitrogenous bases from the starting point is a sequence of 6 base pair. यहाँ के 10 nitrogenous bases के ऊपर क्या सीक्वेंस होता है? सपोज ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर है. सो बिफोर प्रमोटर देर इज अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर जिसको हम क्या बोलते हैं? TATAAT. 10 नाइट्रोजिनस बेसिस पे क्या सीक्वेंस होगा? 6 बेसिस का ये सीक्वेंस होगा. सो ये रीजन को क्या बोलते हैं? प्रिब्नोबॉक्स. सो सिग्मा फैक्टर ये प्रिब्नोबॉक्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड देन इट हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द प्रमोटर. Whereas in eukaryotes 20 nitrogenous bases from the starting point is a sequence of 7 base pair. प्रोकैरियोट्स में 10 स्टार्टिंग पॉइंट के 10 नाइट्रोजनस बेसिस के पहले क्या है? प्रिब्नोबॉक्स है जिसमें 6 बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है? TATAAT. जबकि यूकैरियोट्स में 20 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है जिसमें एवरी 7 बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है? आइदर TATAT
A A A A or TA 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 T. And this sequence in the eukaryotes is called as a Tata box. What is it called as? It is called as a Tata box. So ये सिग्मा फैक्टर है, वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नो बॉक्स को, एंड यूकैरियोट्स में किसको रिकॉग्नाइज करेगा? टाटा बॉक्स को. नाउ क्या होगा? एट द प्रोमोटर्स आर साइट RNA polymerase breaks the bond between hydrogen bond between the two DNA strands and separate them. ओके, RNA polymerase ने बाइंड कर दिया. बाद में क्या करेगा RNA polymerase? दोनों DNA की चेन तो कैसी है? वाउंड है, एक दूसरे से जॉइंट है. जैसे ही RNA polymerase बाइंड होगा प्रमोटर पे, सो ये दोनों चेन्स जो अटैच्ड है उनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ये दोनों चेन्स को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा. एंड ऑफ द टू सेपरेटेड चेन्स वन विल एक्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? 5' to 3'. यानी जो सेपरेटेड चेन है उसमें 3' to 5' वाली जो पोलैरिटी है that will act as a template and transcription will begin in the 5' to 3' direction. Now वन बाय वन जो टेम्पलेट के ऊपर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके कॉम्प्लीमेंटरी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंटीसेंस स्ट्रेंड्स के ऊपर आ जाएंगे. एंटीसेंस या कौन से स्ट्रेंड? टेम्पलेट स्ट्रेंड. से फॉर एग्जांपल टेम्पलेट स्ट्रेंड की पोलैरिटी क्या है? इट इज़ 3' to 5'. से फॉर एग्जांपल इसका सीक्वेंस है AT ये सपोज सीक्वेंस है किसका? टेम्पलेट स्ट्रैंड का. ओके, नाउ दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंटीसेंस स्ट्रैंड. अभी अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल इसके ऊपर बेसिस आएंगे एंड दिस विल बी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. अभी RNA में मोनोफॉस्फेट की ज़रूरत होती है बट इनिशियली क्या आते हैं? ट्राइफॉस्फेट. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे U आएगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे U आएगा, यहाँ पे C आएगा. सो ये RNA का सीक्वेंस है. लेकिन ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस आए ये कौन से फॉर्म में है? ट्राइफॉस्फेट में, जैसे कि ATP, GTP, UTP एंड CTP. अभी आपने ये प्रोसेस रेप्लिकेशन में भी देखा कि ट्राइफॉस्फेट आते हैं. ट्राइफॉस्फेट में जो टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं वो पायरोफॉस्फेट होते हैं, जो ब्रेक होकर दो फॉस्फेट क्या रिलीज़ करते हैं? एनर्जी. यानी टर्मिनल 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, यानी क्या हो गए? मोनोफॉस्फेट, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द RNA. एंड दो जो फॉस्फेट निकले दे आर कॉल्ड एज द पायरोफॉस्फेट, जिसके अंदर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है. यानी पायरोफॉस्फेट हाइड्रोलाइज द 2 phosphates फ्रॉम ईच एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड which releases the energy and will be used in the transcription. So that is the process of the initiation. Initiation promoter site पे sigma factor help करेगा promoter site को help ढूंढने के लिए. जैसे ही promoter मिल जाएगा RNA polymerase bind होकर दोनों chain को separate करेगा and एक template strand पे RNA का synthesis होगा. Now elongation. So what is elongation? RNA polymerase it establishes a phosphodiester bond between the adjacent ribonucleotides. Sigma factors later separate. Core enzymes move along the antisense strands till it reaches the terminator. Okay, ये दोनों strands है. Okay, यहाँ पे ये कौन सी है? 3' to 5' and ये कौन सी है? 5' to 3'. यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे क्या है? टर्मिनेटर है. यहाँ पे RNA पोलीमरेज ने बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन किया. ट्रांसक्रिप्शन जैसे कंटिन्यू होता जाएगा, अभी ये चेन क्या हो गई? इंक्रीज हो रही है. इट इज़ इलोंगेटिंग. ओके, एंड इट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स विच साइड? इट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स द टर्मिनेटर साइड. सो द ग्रोथ ऑफ द RNA chain that is called as the elongation. Now finally the process of termination. So termination, when RNA polymerase enzyme reaches a terminator site, it separates from the template DNA. So suppose ये DNA template है, ये कौन सा साइट है? प्रमोटर साइट है. ये कौन सा साइट है? टर्मिनेटर. ये 3', ये 5', ये 3', ये 5'.
यहाँ पे आरएनए बना, अभी ये कहाँ पे आ गया, टर्मिनेटर पे। टर्मिनेटर पे जैसे ही आ जाएगा देन इट विल सेपरेट, ये आरएनए क्या हो जाएगा, इट गेट सेपरेटेड। नाउ ये कैसे सेपरेट होता है, सो आरएनए जब टर्मिनेटर साइट पे जाएगा, सो ये टर्मिनेटर साइट पे डीएनए का कौन सा सीक्वेंस होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। यानी सपोज कैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है कि आगे से भी रीड करो कि पीछे से भी रीड करो, इसका रीडिंग डायरेक्शन कैसा होगा, सिमिलर होगा। सपोज ए टी 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 ए, सो अगर दूसरे साइड से भी रीड करोगे तो ये क्या है, ए टी टी ए। सो सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. Now, and most RNA polymerase recognize the terminator site. Now, in most of the cases, RNA polymerase ही किसको फाइंड करेगा, टर्मिनेटर साइट को, एंड वो क्या करेगा, RNA सिंथेसिस को बंद कर देगा. बट इन सर्टन प्रोकैरियोट द टर्मिनेटर साइट इज recognized with the help of a special factor, special protein which is called as a Rho factor. In most of the cases, in all eukaryotes, आरएनए पॉलीमरेज ही टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करेगा, बट इन सर्टन प्रोकैरियोट्स द रो फैक्टर विल बी हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द टर्मिनेटर साइट. रो फैक्टर इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स द आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटर साइट. So basically Rho factor gets attached to the RNA polymerase and then it will help to recognize the terminator site. So now ये process of transcription जो आपकी बुक में explain किया है simple है. It we will see there is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes the transcription of all types of the RNA in bacteria. हमने बैक्टीरिया में देखा कि एक ही RNA polymerase होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 RNA polymerase होती है. Whereas in bacteria only one RNA polymerase है which will form all the 3 types of the RNA. Polymerase binds to the promoter and initiates the transcription process. ये process को बोलते हैं initiation. It uses nucleoside triphosphate as a substrate and polymerase in a template dependent fashion, showing the rule of the complementarity. It is somehow also facilitates the opening of the helix and continues the elongation. हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिक्स को क्या करेगी, तोड़ेगी, यानी 2 चेन को सेपरेट करेगी. Only a short stretch of the RNA remains bound to the enzyme. Once RNA polymerase reaches the terminator, the nascent RNA falls off. Nascent यानी freshly synthesized RNA and falls off. So also the RNA polymerase. यानी RNA polymerase तो DNA से अलग हो ही जाएगा and जो RNA बना वो भी separate हो जाएगा. This results in the termination of the transcription. Now, an intriguing or interesting question is that how is RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps which are initiation, elongation and termination? Interesting question है कि RNA polymerase ये तीनों 3 steps कैसे catalyze करता है. So basically RNA polymerase तो सिर्फ elongation ही करता है प्रोकैरियोट्स में. इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन तो 2 फैक्टर्स करते हैं. इनिशिएशन कौन करता है, सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के कोर एंजाइम से बाइंड होता है तो वो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है. एंड जब आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर अटैच हो जाएगा तो ये रो फैक्टर टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल है, जिसका मीनिंग ये हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ कौन सा स्टेप करता है, इलोंगेशन. आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. It associates transiently with the initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively. So RNA polymerase किसके साथ बाइंड करके इनिशिएशन स्टार्ट करता है, तो सिग्मा फैक्टर के साथ. एंड जब RNA पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ बाइंड हो जाएगा तो वो टर्मिनेशन में हेल्पफुल होगा. Association with this factor alter the specificity of RNA polymerase to initiate or terminate the process. In bacteria, since mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, as there is no separation of the cytosol or nucleus in bacteria,
Many times translation can begin much before the complete mRNA is fully transcribed. See क्या बोल रहे हैं, पहले तो जैसे यूकैरियोटिक डीएनए जो आरएनए जो बनता है उसमें कैसा होता है, कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं, नॉन कोडिंग एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग। बट प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे एमआरएनए बन गया वो एक्टिव होता जाएगा। एंड दूसरा, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही जगह पे होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा एंड ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। बट बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है ही नहीं है, सब प्रोसेस कहाँ पे होने वाला है, एक ही जगह पे। एंड दूसरा, आरएनए प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एमआरएनए बन जाएगा बाद में ही प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, थोड़ा एमआरएनए भी बन जाएगा तो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। So we can say that transcription and translation are coupled in the bacteria. So see, these are the process of transcription in bacteria. ये दो चेन है, one is 5' to 3' and another 3' to 5' and another one is 5' to 3'. So ये रेड वाली चेन जिसकी पोलरिटी 5' to 3' है वो 3' to 5' है, वो किसकी तरह वर्क करेगी, टेम्पलेट। ये उसका प्रमोटर रीजन है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा। नाउ स्लोली क्या होगा, ये एमआरएनए बनता जाएगा, इलोंगेशन। एंड फाइनली देर इज़ अ टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा, रो फैक्टर के साथ। ये आरएनए पॉलीमरेज एंड में भी सेपरेट हो गई एंड आरएनए भी ये स्ट्रैंड से सेपरेट हो गया। So these are the process of transcription in the eukaryotes: initiation, elongation and termination. Sigma factor, RNA promoter, RNA polymerase binds to the promoter. ये चेन का एक्सटेंशन हुआ, elongation हुआ and terminator पे रो फैक्टर आ गया and the process of the transcription will stop. So this is the process of transcription occurring in the prokaryotes. Today I end my lecture here. In next lecture eukaryotes में थोड़ा processing RNA की ज़रूरत है, तो how RNA processing occur we will see that. Thank you students.